یسوع مسیح میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاسٹر سہیل ہیں، تو ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں کہ خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہم خداوند کے حضور جو ہے وہ سنجیدہ ہوں، اس کے کلام کو سنیں سمجھیں، تاکہ خداوند ہمیں، ہمارے خاندان کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ تو جی پاسٹر سہیل کیسے ہیں آج آپ؟ ہاں ٹھیک، شکر ہے، خدا کا شکریہ جی۔ سب سے پہلے کاشف بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت موقع دیا کہ میں خداوند کی گواہی کو، اس کے کلام کو آپ کے ساتھ اور اس ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے خدا کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ اور آج میرے پاس ایک بڑی خوبصورت اور نایاب خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک آیت ہے، بڑا ایک سیکرٹ ہے جس کو مسیحیوں کو جاننا چاہیے، جو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور وہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوسایہ کی کتاب اور باب نمبر 50 آیت نمبر 4۔ آپ ذرا پڑھنے میں رہنمائی کیجئے کہ کس طرح سے کلام مقدس میں یہ دیکھیے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہ بڑی نہایت ایک بابرکت اور امیزنگ یہ بات ہے، ایک سیکرٹ ہے جس کو ہر ایک مسیحی کو جاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے۔ خدا نے شاگرد کی زبان بخشی ہے۔ اب شاگرد کی زبان ہوتی کیسی ہے؟ شاگرد کی زبان وہی ہوتی ہے جو اس کے استاد کی زبان ہوتی ہے۔ جو استاد جیسے کوئی کام سیکھتا ہے تو جیسے استاد کرتا ہے، شاگرد اس کو ویسے ہی کرتا ہے۔ سیم لائک دیٹ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے۔ یوسایہ خدا کا بندہ جو ہے یہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے۔ شاگرد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بنتا ہے شاہوں، بادشاہوں کے گرد گھومنے والا، اور شاگرد کا مطلب سیکھنے والا بھی ہے، طالب علم بھی ہوتا ہے، تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح سے تھکے ماندے کی جو ہے وہ میں مدد کر سکتا ہوں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں، اور 12 شاگردوں کو یسوع مسیح نے ٹرین کیا ہے، اور ٹرین کرنے کے بعد پہلے تو انہوں نے کہا کہ آؤ مجھ سے سیکھو، اور سکھانے کے بعد اب انہوں نے ان کو کہا کہ اب جاؤ اور جا کے سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ایک تو یہاں پہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے ڈسائپلشپ، شاگردیت جو ہے۔ ہر ایک مسیحی کو شاگرد ہونے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ شاگرد بھی ہو، ٹرینڈ ہو، وہ اس نے ٹریننگ لی ہو، اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ آگے دوسرے لوگوں کو بھی ٹرین کرے۔ شاگرد جو ہیں وہ یسوع مسیح کی زبان بولتے تھے، اور اسی لیے وہ ساری دنیا کو میسج سنانے میں اور ان کو تعلیم دینے میں کامیاب ہوئے، اور لوگوں نے تعلیم لی اور دنیا کنورٹ بھی ہوئی۔ آج دیکھنے والی بات یہ ہے، کیا مسیحیوں کی جو زبان ہے کیا وہ شاگردوں والی زبان ہے؟ کیا وہ شاگردیت والی زبان ہے؟ کیا وہ جو یسوع مسیح کی زبان بولتے ہیں وہ خدا والی زبان بولتے ہیں؟ اس کو بڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ موسٹلی ہمارے لوگ دنیا داری میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، زیادہ وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر گزارتے ہیں، اور وہ پھر زبان بھی وہی بولتے ہیں۔ مثلاً کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہر اینگل سے بھی آپ چیک کر لیں، دنوی چیزیں، دنوی باتیں، انداز بیاں، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، مزاج جو ہے وہ دنوی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند سے تعلیم یافتہ ہوں اور خداوند کے شاگرد ہوں تو پھر ہمارا مزاج، ہمارا رویہ،
हमारी बातें, हमारा उठना बैठना सब कुछ मसीह वाला होगा। बिल्कुल है। अभी अगर हम अपने घरानों का, मसीही घरानों को देखें तो वालिदैन ने नाम नबियों के नामों पे रखे होते हैं, हाँ। बच्चों को गालियां दे रहे होते हाँ हैं, जी। और ये फिर कौन सी जबान होती है? स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। जब हम देखते हैं कि गालियां दी जा रही होती हैं, हाँ। और कलाम मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है कि गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। नहीं। अब दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पे बच्चों को लानत की जा रही है, जबकि हम नए अहदनामा में लिखा है कि आप बरकत के वारिस हैं, लानत मत कीजिए। हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे बच्चों को लानत, घरों पे लानत माएँ जो है वो कर रही होती हैं, बड़े कर रहे होते हैं। हाँ। और ये भी जानने वाली बात है जब इल्जाम तराशी गीबत गोई हो रही है, हाँ। और ये फिर हम कौन सी जबान बोल रहे होते हैं? बिल्कुल है। ये फिर डेविल स्पिरिट ही कंट्रोल कर रही होती है हाँ। कि जब वो गालियां दी जा रही होती हैं, जब वो गीबत कोई की जा रही होती है, जब इल्जाम तराशी की जा रही होती है, तो फिर ये खुदा का रूह नहीं कंट्रोल कर रहा होता, ये बैड स्पिरिट ही जो है कंट्रोल करती है। हाँ। पर लेबल खुदा का लगा हुआ है। लेबल तो मसीही, जैसे देखिए नाम कुछ भी है, हाँ। असलम मसीह, बूटा मसीह, हाँ। कई और तरह के नाम, तो नाम के साथ मसीह लगता है, हाँ। लेकिन वो मसीही है नहीं, क्योंकि शागिर्दियत की जबान ही नहीं, हाँ जी। शागिर्दियत का अंदाज ही नहीं है, हाँ। शागिर्दियत इख्तियार ही नहीं की हुई। हाँ। ये भी बात है कि बहुत सारे लोगों ने हाँ। तो शागिर्दियत इख्तियार ही नहीं की होती, शागिर्द ही नहीं होते, बिल्कुल है। और जब वो शागिर्द नहीं होते तो डेफिनेटली उनकी जबान भी जो है वो वाली नहीं होती। सो आज जो ये खुदा के खादिम, जब हम देखते हैं यशायाह की मार्फत, जब हम सीखते हैं खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आगे हम जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये लिखा है कि वो मुझे हर सुबह जगाता है। हाँ। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है, जानने के लायक बात है। खुदा का रूह रात को 12 बजे जगा दे, हाँ। 1 बजे जगा दे, हाँ। 2 बजे जगा दे, सम टाइम होता है खुदा मसीहियों के साथ। हाँ, अपने लोगों को सिखाने के लिए एक्टिव रहता है। अच्छा, वो तो जगाता है, खुदा का रूह जगाता है, रात को जगाता है। तो हम क्या करते हैं, क्लॉक की तरफ देखते हैं, टाइम देखते हैं, ओह माय गॉड अभी 12 बजे, ओहो चलो अभी तो काफी है, सुबह अभी काफी टाइम है सोने में। मैं सुबह जो है कर लूंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा, वो ना उठते ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर 2 बजे हैं, 1 बजे है, फिर हम सोचते हैं नहीं अभी तो बड़ा ये टाइम है। इस सीक्रेट को हम ये नहीं जानते कि वो मुझे जगा रहा है। हाँ जी। और खुदा का रूह बेदार कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि वो मेरा कान लगाता है, हाँ। ताकि शागिर्द की तरह सुनो। हाँ। ये सुनने का वक्त है, हाँ। उसके हुजूर में बैठने का वक्त है, सीखने का लेने वक्त का है। वक्त है, हाँ। सीखने का वक्त है। और हम उसको इस तरह से देखते हैं, अच्छा अचानक आंख खुल गई। हाँ। हम सुबह उठ के दूसरों से, रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे 2 घंटे तक नींद नहीं आई। अच्छा, आप ये नहीं अंडरस्टैंड करके खुदा का रूह आपको बेदार कर रहा है, हाँ। सिखाने के लिए कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो, हाँ। ताकि मैं तुझे बरकत पर बरकत जो है वो दूं। और ये वो मुझे हर सुबह जगाता है। हाँ। हम उठ तो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें क्यों जगाया गया, करना क्या है। हाँ। सो आज ये जानने की जरूरत है। और फिर शागिर्दों की तरह आगे जो लिखा है ना, वो मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। हाँ। ये बड़ा जबरदस्त है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सारे प्रॉफिट्स जो हैं उनको देखिए। हाँ। यूसाया जो है हाँ जी। वो शागिर्द की तरह सुनता रहा है, हाँ। तो 66 अबवाब लिख सके। हाँ जी। यूहन्ना को आप देखिए हाँ। कि अगर वो शागिर्दों की तरह सुनता रहा है हाँ। और अच्छे शागिर्द की तरह सीखता रहा है, उसने नए अहदनामा में एक इंजील लिखी है, हाँ। 3 खतूत लिखे हैं, हाँ जी। और सबसे बढ़कर जो है उसने मुकाशफा की अजीम किताब जो है, वो सारी जो मुकाशफा के ऊपर किताब है वो किताब जो है वो लिखी है। हाँ। तो वो कैसे लिख सका है? वो शागिर्द है, हाँ। वो खुदा से रिसीव कर रहा है, हाँ। और वो खुदा की आवाज को सुन रहा है, वो रूहुल कुदस की आवाज को सुन रहा है, और वो नोट कर रहा है, हाँ। और देन मुकाशफा जो है आज वो हम तक पहुंचा। हाँ। सो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को देखते हैं, मसीहियों को देखते हैं, और अफसोस की बात है कि कई खादमों की भी जबान जो होती है ना, वो शागिर्द वाली जबान नहीं होती। वो उस तौर से वो मिजाज नहीं होता। अगर आप एक रेफरेंस देखिए यहाँ पे फिलिपियों
बाब नंबर 2 आयत नंबर 5। पेज नंबर बताइए। फिलिपियों फिलिपियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 5, सफा नंबर 190 पे जी। यहां पे ये लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हाँ बिल्कुल। नंबर 1 तो जबान, नंबर 2 मिजाज। तो आपके मिजाज में हलीमी, नरमी, शफकत, प्यार, बाप वाली मोहब्बत, वो सारी चीजें जो हैं एक बर्दाश्त खादम करना। की जिंदगी में जो है वो बर्दाश्त होनी करना, चाहिए। हाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो खादमों की लैंग्वेज भी जो है हाँ। वो भी बड़ी होती है। मिसाल के तौर पे कई लोग जो हैं वो पंजाबी बोलना बहुत अच्छी बात है, हाँ जी। और लोग जो है वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेज रहे होते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भी जो है वो इंग्लिश बोलने की बजाय वो जो है ना वो उर्दू भी नहीं बोल रहे होते, पंजाबी बोल रहे होते हाँ हैं। जी। टीचर का ये है। हाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बहुत सारे खादिम भी जो हैं हाँ। वो लैंग्वेज जो है वो एक जुमला बीच में कलाम बयान करते हुए हाँ। एक वो पंजाबी का बोल लेते हैं और उर्दू का बोल लेते हैं, फिर 10 जुमले पंजाबी के बोल के जैसे उसका तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ जी। कि ये वाली बात है। हाँ। सो यहाँ पे ये है कि मिजाज जो है हाँ। वैसा ही मिजाज रखो हाँ। जैसा मसीह यीशु का मसीह यीशु। है। अगर आप देखें तो पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 2 उसकी एक आयत जो है वो देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि खुदावन की पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 16, और खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हाँ जी। अच्छा, हमारी जबान जो है वो शागिर्द वाली होनी चाहिए, हाँ। हम में अकल जो है वो मसीह वाली होनी चाहिए, हम में मिजाज जो है वो मसीह वाला होना चाहिए, मसीह वाला होना चाहिए। और उसके अलावा जो है हमारा उठना बैठना गुफ्तार चलना सब कुछ वो शागिर्दियत वाला होना चाहिए। हाँ जी। और हाँ। देन जाकर हम ब्लेसिड हैं। हाँ। अगर हम आज शागिर्द हैं। अगर हम इस चीज को आज पा जाते हाँ हैं, जी। इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मसीहियों के लिए एवरी क्रिश्चियन, हाँ। हर एक मसीही की ये जरूरत है कि उसकी जबान जो है हाँ। वो शागिर्द वाली जबान, शागिर्द वाली हो। उसकी अकल जो है वो मसीह वाली हो, और उसका मिजाज जो है हाँ। वो यीशु मसीह वाला यीशु हो। मसीह वाला। सो काशिफ भाई, ये जब मैंने ये बात ये सीक्रेट जाना, मैंने इससे बड़ी ब्लेसिंग बड़ी बरकत रिसीव की कि हमारा मिजाज, हमारी अकल, हमारी जबान, हमारा किरदार, एवरीथिंग जो है वो सारा का सारा मसीह यीशु वाला जो है वो होना चाहिए। हम में से खुदावन जो है वो नजर आनी चाहिए। सो खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से आपको और सुनने वालों को सबको जो है खुदावंद बड़ी बरकत दे। जी भाई साहब, इस आयत के जो आखिरी हिस्सा है उसमें बड़ी खूबसूरत बात है कि वो हर सुबह जो है वो हमें जगाता है ताकि हम जो है उसको सुने सीखें। और मैं अपने मसीही बहन भाइयों से जो है वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप जो है अनयूजुअल जो है उठें तो ज़रूर जो है वो दुआ में थोड़ा वक्त गुजारें, बाइबल स्टडी में थोड़ा वक्त गुजारें। शायद उस वक्त खुदा नहीं, रियली है, रियलिटी है, जगाता है वो। हाँ जी, खुदा का शायद 100% जो है, शायद खुदा उसको चाह रहा होता है कि मेरा बंदा उससे सुने, उससे सीखे, ताकि वो अपने लोगों की जो है वो बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सके। बिल्कुल, आप बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। और अमूमन जो है वो ऐसा होता है, खुदा का रूह जो है वो रात के पहरों में जगाता है, और ये बरकत का वक्त होता है। सम टाइम खुदा का रूह दुआ में ले जाता है कि आप दुआ करें, और फिर या ये है कि आप कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं और खुदा आपकी रूह में जो है वो कलाम के हिस्सा जो है सिखाना और डालना और समझाना जो है शुरू करता है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे इस कलाम के वसीले से मुझे बरकत मिली है, आप लोगों को बरकत मिली है, और दूसरे जो बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को भी कसरत के साथ खुदावंद बरकत दे। तो भाई साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सारी नेम, तेरी सारी बरकतों, बख्शिशों, अनायात, फरावानी और तौफीक के लिए खुदावंद खुदा। प्यारे भाई काशिफ पाल के लिए, उनकी सारी इस मेहनत और कोशिश के लिए जो वो ये चाहते हैं कि बहुत सारे मसीही बहन भाई जो हैं वो खुदावंद तेरे कलाम मुक़द्दस से और भी बेहतर तौर पर आगाही जो है
वो हासिल कर सकें। आज के कलाम के लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमारी ज़बान शागिर्द वाली होनी चाहिए, हमारा मिजाज मसीह वाला होना चाहिए, हमारी अकल जो है वो मसीह वाली होनी चाहिए। ऐ खुदावंद खुदा, जितने बहन भाई ये पैगाम सुनते हैं, खुदावंद खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील हों। और मैं ईमान रखता हूँ यकीनन खुदावंद तेरा कलाम जो है वो असर रखता है, वो बेतासीर नहीं लौटता। ऐ खुदावंद खुदा, हम सबको बड़ी तौफीक अता फरमा कि हम शागिर्दियत की रूह में रहें और खुदावंद खुदा तेरे साथ कायम और वफादार और लिपटे रहें। ये सब कुछ बाप आसमानी तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से और रूहुल कुदस की रहनुमाई में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।